Hello everyone, I hope you are doing good and studying well for your examinations. In this lecture, we are going to cover the updates that have been made in chapter number 9 of your CMA final cost audit, that is filing of cost audit report to the MCA in XBRL format. सबसे पहले इस चैप्टर का नाम नया जो स्टडी मटेरियल है उसमें रखा गया है प्रेपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. ऑलराइट, द मेजर addition that has been made is the types of errors that you might locate while validating the instance document. Alright, आपको याद है जब हम कितने steps थे when we are filing the cost audit report in XBRL? There were 8 steps total. So when we use the validation tool to validate the instance document, over there सब हमने तो कहा था कि PDF में एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दो, बट अगर वहाँ कुछ एरर्स लोकेट होते हैं तो उन एरर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स यू माइट कॉमनली फेस, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. Before that, there is a short topic that is the types of audit report. So tell me, in which form does the auditor file the audit report? In form number CRA 3, right? CRA 1 में cost records maintain होते हैं, CRA 3 में cost audit report file की जाती है. The cost records are being audited and in CRA 3 the cost audit report is submitted. Now the primary responsibility for the preparation of cost audit report is with whom? The auditor is going to sign the cost audit report. उसके जो annexures होते हैं, इतने सारे annexures आपने देखा था ना structure of the cost audit report, कितने सारे annexures होते हैं. Annexures fill करने की responsibility is with the company. The company can consult with the cost auditor and fill the annexures. So इस पे एक आपका MCQ question आ सकता है कि who is responsible for filling the annexures in the cost audit report? The company. The company is responsible. All right. Now, if the auditor has any observations, any suggestions or remarks in the cost audit report, वो paragraph number 1 से 6 में लिख सकता है in the prescribed form. But before reporting it to the government, the auditor first need to communicate any observation, remark, suggestion with the management. Opportunity देनी होगी, opportunity to be heard. If the auditor is satisfied with the explanation given by the management, the auditor may decide to drop the issue, नहीं report करेंगे. If the auditor is not satisfied, auditor may issue a qualified or an adverse report. So these are the two types of report, qualified, adverse. अगर सब बढ़िया है bro, ठीक है, सब कुछ सही है, there is no suggestion, no observation by the auditor, in that case what kind of opinion do we issue? We issue a clean opinion. ये सब हमने इंटर में भी ऑडिट में पढ़ा है, clean report issue करते हैं. But if there are certain remarks, suggestions, in that case qualified or adverse report. अब बात करते हैं qualified report क्या है, adverse report क्या है. Qualified report means that the auditor has certain observation or there is any misstatement with regard to any particular cost item. ऐसा misstatement है which is not affecting the cost statements as a whole. Which is not affecting the cost statements as a whole. कुछ minor है but it is material. It is material but not affecting the cost statements as a whole. Say for example, सिर्फ factory overheads के अंदर कुछ misstatement है. It is not affecting the cost statements as a whole. But अगर आप समझो कि inventory के अंदर, closing stock के अंदर अगर misstatement है, आपके prime cost के अंदर अगर misstatement है, main elements के अंदर misstatement है, in that case it is affecting the cost statements as a whole. उसे हम कहते हैं it has a pervasive effect. Pervasive मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी. इसे हम कहते हैं omnipresent. ठीक है, सब चीजों को इफेक्ट कर रहा है, बट समथिंग दैट डज नॉट हैव अ परवेसिव इफेक्ट, उसके लिए हम इशू करेंगे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. सिर्फ एक छोटे से कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से मिस स्टेटमेंट हो रही है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. बट काफ़ी सारे कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, इन दैट केस वी इशू अ एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट. एडवर्स रिपोर्ट इज बेसिकली कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ योर क्लीन और अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. इन दोनों को हम कहते हैं मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. क्वालिफाइड एंड एडवर्स कम्स अंडर मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. तो एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट मीन्स दैट the misstatement is having a pervasive effect on the cost statements. It is having or believed to have a pervasive effect on the cost statements, on the cost of production, cost of sales, etc. ठीक है.
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इधर ऐड हुआ है, इससे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू 4 to 5 एरर्स इन वन लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। सो सिंस इट हैज़ बीन एडेड न्यू, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे और बहुत ईजी है। अभी मैं आपको जिस तरह से लिखवाऊंगी आपको भी वैसे वैसे नोट डाउन करते जाना है। थोड़ा सा टेक्निकल है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक बिफोर यू डू इट प्रैक्टिकली योर सेल्फ। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, आप कुछ एरर्स फेस करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू 100% इन आउट अंडरस्टैंड द टॉपिक। अभी एक आपको ब्रीफ आइडिया मैं दे देती हूँ क्या है यहाँ पर। जब हम फाइल करते हैं तो जो एरर्स अकर कर सकती है, उन एरर्स को हम इंटरप्रेट करते हैं। एरर मतलब क्या हुआ, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स कैन अकर इन केस ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट इन XBRL। एरर मतलब हो गया या तो वैल्यू आपने गलत दी है किसी आइटम की, या फिर फॉर्मेट गलत है। सो एरर कैन आइदर बी इन वैल्यू और इन फॉर्मेट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, डेट फॉर्मेट अगर आपने ऐसे लिखा है 10th May 2016, ये डेट फॉर्मेट नहीं है। डेट फॉर्मेट इट हैज़ टू बी एंटर्ड लाइक दिस। और अगर YYYY MMDD फॉर्मेट है तो इस तरह से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द एरर इन फॉर्मेट। क्लियर। अभी चलो यहाँ पे मैं उल्टा चल रही हूँ। ये यहाँ आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ कॉमन एरर्स हैं, एनेक्सर 2। ठीक है, और नीचे आप अगर देखोगे एनेक्सर 1 है इंटरप्रेटिंग द एरर्स। तो मैं पहले आपको इंटरप्रेटिंग द एरर्स पढ़ाऊंगी, फिर हम आएंगे लिस्ट ऑफ कॉमन एरर्स में। सी दिस इज अ लिटिल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड स्टफ हियर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना पड़ेगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, जब भी कोई एरर अराइज होता है ना, तो इस तरह की आप कोई लाइन देखोगे लिखी हुई आएगी आपके स्क्रीन पे। ये देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, वेट अ मिनट, सी एग्जाम्पल, एक्सप्लिसिट मेंबर्स ऑन एक्सिस this of table, this should be present in sequential order items for members। देख रहे हो आप, इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी लंबी सी। तो उस स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई, कैसे इंटरप्रेट करना है, बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एलिमेंट्स विल बी गिवन विद इन सिंगल कोट्स। ठीक है, तो जब भी सिंगल कोट्स में कुछ देखेंगे मतलब वो एलिमेंट है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एलिमेंट है। कुछ भी वैल्यू हुआ तो वैल्यू दिखाया जाएगा बॉक्स ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो आपको एरर को समझना पड़ेगा, बिकॉज ऑल एरर्स वी कैन नॉट डिस्कस हियर। जब आप एक्चुअल फाइलिंग करोगे तो आप कुछ एरर फेस करोगे, बट अगर आपको लॉजिक पता है कि वैल्यू को कैसे डिनोट किया जाता है, एलिमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, और एक्सप्लिसिट मेंबर्स जो हैं, एक्सप्लिसिट मेंबर्स को कर्ली ब्रेसेस में डिनोट किया जाता है। एक्सप्लिसिट मेंबर्स मैम क्या होते हैं, आप देखोगे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट XBRL फॉर्मेट में कई सारी टेबल्स बनी होंगी। टेबल्स के अंदर कई बार एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मेंबर्स। कई जगह आपको डिफाइन करना है आपके 1 2 3 4 5 6 है या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। द प्रिपेयर ऑफ द इंस्टेंस डॉक्यूमेंट नीड्स टू फिल दैट। फिल तो यहाँ पर भी एक्सप्लिसिट में भी फिल आपको करना है, बट फील्ड्स प्रोवाइड की जाएगी बाय द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रेसेस में होगा। एक्सेस नेम्स जो होते हैं, एक्सेस नेम्स दे विल बी शोन विद इन पैरेंथेसिस, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। एरर्स विद स्टार्ट विथ CVC, काफ़ी सारी एरर्स, अभी हम जब एरर्स पढ़ेंगे आप देखोगे CVC से शुरू हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो XBRL के टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी याद है आपको, जो सेट ऑफ बिजनेस रूल्स एंड लॉजिक्स थे, टैक्सोनॉमी स्कीमा के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर वेंडर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं कुछ डेफिनेशंस यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। टेबल, या इसको हम हाइपर क्यूब, आप जब एरर्स देखोगे ना हाइपर क्यूब लिखा होगा, हाइपर क्यूब, डायमेंशन, एक्सप्लिसिट मेंबर, डोमेन मेंबर, टाइप्ड मेंबर, तो ये सब क्या होता है। हाइपर क्यूब मतलब हो गया टेबल,
फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनाए, से फॉर एग्जाम्पल 2012, 13, 14, 15 सेल्स, COGS, प्रॉफिट, ठीक है, इस तरह से आपका टेबल बना हुआ है। तो टेबल मतलब हो गया हाइपर क्यूब। जो सेल्स, COGS वगैरह सारे हैं, दीज आर नोन एज एक्सेस। सो एक्सेस या डिमेंशन क्या हो गया? कैटेगरी यूज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स हैविंग रिलेशनशिप विद अ टेबल। एक्सप्लिसिट मेंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या होते हैं, फिक्स किया हुआ रहेगा। टाइप्ड मेंबर या इम्प्लिसिट मेंबर भी इसको कहते हैं। दिस इज टू बी फिल्ड क्रिएटेड बाय द यूजर ओनली। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका कैसे एरर्स को इंटरप्रेट करेंगे। अभी आते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहला एरर है, देखो ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा अगर ये एरर हुई तो, इशू इन नेट कनेक्टिविटी, प्लीज चेक योर कनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जो टैक्सोनॉमी होती है XBRL की, उसको आपको प्रॉक्सी सेटिंग से चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप लैन पे कनेक्टेड हैं तो कहाँ जाएंगे? टैक्सोनॉमी मेन्यू इन द टूल टू एंटर द प्रॉक्सी होस्ट and port along with username and password. This is to set up the internet connection required to download the taxonomy. आपको पता है ना टैक्सोनॉमी अलग अलग होती है। अगर आप अकाउंट्स को फाइल कर रहे हो XBRL में तो टैक्सोनॉमी अलग है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए टैक्सोनॉमी अलग है। सो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द इंटरनेट कनेक्शन यू हैव टू फिल इन द प्रॉक्सी होस्ट एंड द पोर्ट। देखो थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा होगा, बट जस्ट आप सुन के इसको समझ के एक बार लर्न करने की कोशिश करो। एक्चुअल जब करोगे प्रैक्टिकली तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा सकती, राइट? नेक्स्ट एरर इज PDF इज नॉट गेटिंग जनरेटेड, एरर क्रिएटिंग PDF। इन दैट केस यू नीड टू चेक द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग एंटर्ड इन द इंस्टेंस डॉक्यूमेंट। जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी लिखा है, एड्रेस लिखा है, कुछ भी लिखा है, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को चेक करो एंड इंश्योर दैट इट इज एज पर द HTML गाइडलाइंस। जो टैक्सोनॉमी है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पार्ट के अकॉर्डिंग द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इज देयर और नॉट। थर्ड एरर बहुत सिंपल है, फॉर्मेट ऑफ डेट एंटर्ड इज नॉट एज पर द वैलिड फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो CVC दिखा आपको, CVC डेट टाइप वैलिड 1.2.1, ये डेट ऐसे लिख दिया, बट दिस इज नॉट अ वैलिड डेट, नॉट अ वैलिड वैल्यू। आपको डेट एंटर करना है इस फॉर्मेट में। तो CVC मतलब क्या बताया था मैंने? इट इज नॉट एज पर द टैक्सोनॉमी स्कीमा। टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग इट शुड बी इन दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट, बूलियन डेटा टाइप्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक बूलियन डेटा टाइप होता है। ये जो डेटा टाइप होता है ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर कोई फील्ड ऐसी है जहाँ पे बूलियन डेटा टाइप बैकएंड में फिट है कि बूलियन डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगा, आपने उसमें येस या नो लिख दिया, इट विल थ्रो एन एरर, बिकॉज वहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखना है। ठीक है, समझ गए? तो एरर में क्या दिखाएगा आपको? CVC डेटा टाइप वैलिड 1.2.1 येस इज नॉट अ वैलिड बूलियन, इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर बूलियन, आपको ट्रू या फॉल्स डालना होगा। नेक्स्ट एरर 0 to 100 एंटर्ड फॉर परसेंटेज डेटा टाइप फील्ड्स। कोई भी अगर परसेंटेज डेटा टाइप फील्ड है उसकी वैल्यू सिर्फ 0 से 10 तक होगी, ठीक है। जैसे रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इट शुड बी लेस देन 100%, मतलब आप समझ लो अगर 60% है, वो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर 60% है तो वैल्यू आप 60 नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा 0.6, बिकॉज वैल्यूज कैन बी एंटर्ड ओनली बिटवीन 0 to 1, सॉरी नॉट 10, 0 to 1। नेक्स्ट एरर इज रॉन्ग करेंसी कोड लाइक RS एंटर्ड। आपको पता है ना अब RS नहीं चलता है, INR चलता है। तो अगर कहीं पे आपको रुपीज़ में कुछ एंटर करना है, उसके पहले आपको मॉनेटरी यूनिट सिलेक्ट करना पड़ता है, INR। सो एरर्स क्या क्या हो सकती है? नो वैलिड यूनिट स्पेसिफाइड फॉर मॉनेटरी आइटम, कोई वैलिड यूनिट स्पेसिफाइड नहीं है। नो यूनिट डिफाइंड फॉर यूनिट ID RS। इनवैलिड यूनिट स्पेसिफाइड फॉर मॉनेटरी आइटम दिस। INR के जगह आपने ले लिया SGP, सपोज सिंगापुर डॉलर्स ले लिया, SGD, या आपने अमेरिकन डॉलर्स या कुछ भी पाउंड वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ दूसरा आपने ये चूज कर लिया यूनिट। रिपोर्टिंग करेंसी शुड बी INR फॉर दिस, फॉर इंडियन करेंसी INR नीड्स टू बी एंटर्ड, बताया ना मैंने आपको। नेक्स्ट एरर इज मैंडेटरी फील्ड्स हैव नॉट बीन एंटर्ड। तो ये तो बहुत कॉमन एरर है, जहाँ जहाँ स्टार मार्क रहेगा मतलब मैंडेटरी फील्ड्स आपको सारी एंटर करनी है, अगर नहीं करते हैं तो इस टाइप की एरर्स आ जाएगी।
ये क्या एरर में क्या लिखा है देखो, एलिमेंट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ कंपनी फॉर वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड, नॉट प्रेजेंट फॉर डेट दिस। तो आपको ये फील्ड मैंडेटरी है, भरना पड़ेगा। अच्छा, अगर डेट ऑफ एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर भरा है, सपोज ऐसी फील्ड है, डेट ऑफ एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अगर फील्ड है, तो डेट ऑफ बिगिनिंग, डेट ऑफ द फर्स्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑफ एंड ऑफ फर्स्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अगर फील्ड है, तो डेट ऑफ स्टार्ट भी तो फील्ड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये भी एरर थ्रो करेगा। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ मैंडेटरी लाइन आइटम्स ऑफ अ टेबल आर नॉट एंटर्ड in the instance document, for example details of cost auditor table mandatory items, details cost auditor का membership number, address etc etc, phone number वगैरह, membership number, firm का registration number देना होगा। तो mandatory line items भी होने चाहिए, नहीं होने से error। elements are not entered for any abstract, जैसे all the elements of cost accounting policy abstract are mandatory, इस particular date के लिए नहीं fill किया हुआ तो fill करना है। Clear? The elements which come under this abstract should be provided. Next error, the elements are not entered for ordered explicit members. Explicit members मैंने आपको बता दिया था, याद है आपको, फिक्स्ड रहते हैं। implicit या typed members हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर explicit members हैं, उनमें वैल्यू नहीं एंटर किए तो एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, explicit members on axis, details of material consumed of product group axis of table, details of material consumed of product group table should be present in sequential order। ये यहाँ पे point B नहीं रहेगा, this is the same point। The elements should be present for the mentioned explicit members। Clear? In case of a mandatory table there is no element present। table ही mandatory है, उसमें कोई element ही नहीं है। एक हो गया कि लाइन आइटम जो है वो मैंडेटरी है, दूसरा टेबल मैंडेटरी एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कोई तो टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होगा, कुछ तो होगा, येस नो, कुछ तो लिखना होगा, ठीक है। कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, ना आपने जीएसटी लिखा है, ना कुछ लिखा है आपने, तो उस केस में ये एरर थ्रो हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एलिमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द डायमेंशनल मेंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर एक क्वेश्चन है वेदर प्रोडक्ट और एक्टिविटी ग्रुप कवर्ड अंडर कॉस्ट ऑडिट, तो कोई तो प्रोडक्ट ग्रुप एक्टिविटी शुड बी कवर्ड अंडर कॉस्ट ऑडिट। किसी में भी अगर वैल्यू नहीं है, देन व्हाई आर यू कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट? किसी ना किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए तो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। अगर ये नहीं फिल किया गया है तो ये वाली एरर आ जाएगी। ऑल डिटेल्स फॉर गिवन प्रोडक्ट, ऑल डिटेल्स, just a minute, all details for given product activity group code should be provided। For example, all details of applicable product or activity group code are required for the previous year। ठीक है, जो भी डिटेल है सारी प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ग्रुप कैटेगरी। ये एक एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हो सकता है आप जब फाइल करेंगे तो कोई दूसरी इसी तरह की सिमिलर एरर आप पाओगे, तो ये इंटरप्रेट करना अगर आपको आ गया। आजकल सब एरर्स लोकेट करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको उस लाइन में ले जाएगा जहाँ एरर है, एंड देन यू कैन गो एंड रिजॉल्व इट देन एंड देयर, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट डज दिस मीन। लास्ट वन देखो, एन एलिमेंट हैविंग डायमेंशनल रिलेशनशिप इज इनवैलिड विथ रिस्पेक्ट टू सिनेरियो एलिमेंट। तो डायमेंशनल एलिमेंट मतलब हो गया आपके टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। अब कोई भी एलिमेंट है उसका दूसरा किसी ना किसी टेबल के साथ, किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन तो होगा। अगर नहीं है तो ये वाली एरर आ जाती है कि अगर किसी रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, किसको, टूल को, तो ये एरर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 FAQs है मैंने ऐड किए हैं, देखो। Who are the persons responsible for authentication of the cost audit report and annexure thereto? ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया। Authentication, the annexure should be approved by the board of directors before submitting it to the central government. It should be signed by the company secretary and at least one director on behalf of the company. और अगर company secretary नहीं है तो at least 2 directors should sign the this thing, annexures, and audit report should be signed by the cost auditor, of course. So this question is important, mark this as important.
इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ध्यान में रखने वाली चीज़ है आपको, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे आप इम्पॉर्टेंट मत समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको पता है वो मैं नहीं बताती हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, थोड़ा सा टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द कंपनी अंडर द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 2011। इसमें ये फर्स्ट का जो पैराग्राफ है ये आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद ये रूल्स अभी एप्लीकेबल नहीं है, नए रूल्स आ गए हैं। इसमें बस ये चीज़ खाली आप ध्यान रख सकते हैं कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जो भी बुक्स कॉस्ट ऑडिटर को चाहिए उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाए। और कंपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी, गवर्नमेंट को। ये आपको ध्यान में, यही बस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ रिगार्ड टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 9 के जो भी एडिशंस थे उसको कवर कर लिया। आप बस एक बार एरर्स को वापस गो थ्रू कर लेंगे, किस तरह की एरर्स आती है, उसका क्या अर्थ है। क्लियर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।